Good morning, students. I hope that you will be fit and fine at your home. Student, yesterday I have taught you lesson number 6, The Brave Tin Soldiers, written by Hans Christian Andersen. Student, this lesson we have divided into two parts. So, I have taught you yesterday first part of this lesson. Today I will teach you second part of this lesson. Student, yesterday in the first part I have explained there were 25 soldiers in this lesson. They were made with old tin spoon. 24 soldiers were similar, but last one was different from others. He had only one leg, but he was so remarkable. All the soldiers wore red and blue color uniform. They were covered in a box because they were prepared for a birthday gift for a boy. That gift was given to a boy on his birthday. And the last time the boy opened the box, as soon as he saw the tin soldiers in the box, he felt so happiness. And when he saw the one leg tin soldiers, he was looking so remarkable. The boy gave them tin soldiers name. Students, now we will discuss about the rest part of the lesson. When the evening came, evening जब शाम हो जाती है, all the tin soldiers were placed in the box. तो सभी tin soldiers को बॉक्स में रख दिया जाता है, except the one leg soldiers, केवल वन लेग सोल्जर्स के अलावा. इन द इवनिंग, शाम को, when all children and adults adults of the house went to bed, जब सभी बच्चे और वयस्क यानी बड़े, घर के सभी बच्चे और वयस्क बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए, the playthings that were kept on the table, वो जो playthings टेबल पर रखी हुई थी, started playing with each other, वे एक दूसरे के साथ प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं. Seeing the other playthings, tin soldiers in the box also wanted to play. अब दूसरे प्लेथिंग्स को खेलते हुए देख करके tin soldiers भी खेलना चाहते थे. When the clock struck 12, घड़ी में जब 12 बजे, the snuff box opened with a bounce. Snuff box means ज्वेलरी बॉक्स. ज्वेलरी बॉक्स जो है एक उछाल के साथ खुलता है. And a black goblin शैतान come out of it, तो उसमें से शैतान निकल करके आता है. Students, now the story is going to be very excited. So now let's start the chapter. Student, see in your chapter page number 40, passage number 3rd. When evening came, जब रात हो गई, the other tin soldiers were all placed in the box,
सभी दूसरे सोल्जर्स को बॉक्स में रख दिया गया एंड द पीपल ऑफ द हाउस वेंट टू बेड, और सभी जो घर के लोग थे वो बेड पर चले गए अपने, अर्थात सोने के लिए चले गए। देन द प्लेइंग बिगेन टू हैव देयर ओन गेम्स टुगेदर। देन द प्लेथिंग्स बिगेन टू हैव देयर ओन गेम्स। अब जो प्लेथिंग्स थी वो सभी जो है गेम खेलने लगे। टू पे विजिट्स, एक दूसरे से मिलजुल कर, टू हैव सम फाइट्स, एक दूसरे को फाइट करके, एंड टू गिव बॉल्स, एक दूसरे को बॉल दे करके, बॉल फेंक करके, लाइक दिस दे स्टार्टेड टू प्ले। द टीन सोल्जर्स रैटल्ड इन देयर बॉक्स। तीन सोल्जर्स जो थे वो कंफ्यूज थे बॉक्स में। They wanted to get out from the box, वे बॉक्स से बाहर आना चाहते थे। And the people of बॉक्स से बाहर आना चाहते थे and join the amusement, और उस मनोरंजन को, उस enjoyment को ज्वाइन करना चाहते थे। But they could not open the lid, परंतु वो ढक्कन को नहीं खोल सकते थे। The nutcrackers played at leapfrog. Nutcrackers जो श्रोता उसको बोलते हैं हिंदी में, जो नट कट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो, और लीप फ्रॉग खेले। एंड द पेंसिल जम्प्ड अबाउट द टेबल, पेंसिल ने टेबल पर जंप किया। देयर वॉज सच अ नॉइस, इस तरह का शोर हुआ, यानी शोर था कि द कैनरी वॉक अप। कैनरी मीन्स अ लिटिल बर्ड विद अ स्वीट साउंड। जो लिटिल बर्ड थी, छोटी चिड़िया, वो भी जाग गई। एंड बिगिन टू टॉक, और बातें करने लगी। एंड इन पोएट्री टू, और पोएट्री मीन्स यानी वो जो है राइमिंग वर्ड्स सिंग करने लगी, अर्थात कविता जैसे गाने लगी। Only the tin soldiers and the dancer remained in their places. केवल वन लेग tin soldiers और जो डांसर लेडी थी वो अपने प्लेस पर एज इट रहे। She stood on tiptoe. वह बिल्कुल चुपचाप थी। With her legs stretched out. अपनी लेग्स को, वन लेग को ऊपर उठाए हुए, हाई अप किए हुए, और वन लेग पर बैलेंस बना करके खड़े हुए। एज फर्मली एज ही डिड ऑन हिज वन लेग, जिस तरह से वो सोल्जर अपनी वन लेग पर खड़ा हुआ था। ही नेवर टुक हिज आइज फ्रॉम हर फॉर इवन अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए भी अपनी नजर उस प्रेटिएस्ट लेडी से नहीं हटाई। द क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजे थे। 12 o'clock मीन्स इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट, आधी रात का समय था। एंड विद अ बाउंस अप स्प्रैंग द लिड ऑफ द स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स मीन्स ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स का ढक्कन उछाल के साथ खुलता है। बट इंस्टीड ऑफ स्नफ देयर जंप्ड अप अ लिटिल ब्लैक गॉब्लिन। इस ढक्कन को बॉन्स के साथ खुलने के साथ साथ उसमें से एक ब्लैक गॉब्लिन, गॉब्लिन मीन्स शैतान, एक ब्लैक कलर का शैतान उसमें से बाहर निकल के आता है। फॉर द स्नफ बॉक्स वॉज अ टॉय पजल, और जो स्नफ बॉक्स था, ज्वेलरी बॉक्स, वो एक टॉय पजल था, जो मतलब कंफ्यूज कर देने वाला होता है, जिसे सॉल्व करना होता है। द सोल्जर सेड द गॉब्लिन, गॉब्लिन ने सोल्जर से कहा, वन लेग तीन सोल्जर से, डोंट विश फॉर व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उसके लिए इच्छा मत करना जो आपके से संबंधित नहीं है। बट द टिन सोल्जर प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, परंतु उस वन लेग टिन सोल्जर ने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने उसकी बात को उसको नहीं सुना। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेट टिल टुमारो देन, सेड द गॉब्लिन, गॉब्लिन ने इस पर कहा, ठीक है, अगर आप
ऐसा करते हो यानी नहीं सुना आपने तो आप जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए यहाँ पर वेट करिए। When the children came in the next morning, जब नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे आते हैं, they placed the tin soldier by the window, तो वो टिन सोल्जर्स को जो है विंडो के पास देखते हैं, विंडो में। Now whether it was the goblin who did it, अब ये आइडिया किया जाता है कि ये गॉब्लिन हो सकता है जिसने ऐसा किया, और द डार्ट मीन्स फ्लो ऑफ कोल्ड एयर, यानी ठंडी ठंडी हवा जो चली या उसका जो है ये उसका काम हो सकता है, यानी उसने ऐसा किया हो। इज नॉट नोन, यानी कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा कैसे हुआ। बट द विंडो फ्ली ओपन, बट विंडो जो है ओपन हो जाती है, एंड आउट फेल द टिन सोल्जर हिल्स ओवर हेड, और जो टिन सोल्जर है वो हेड के बल 3 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है सड़क पर। इट वॉज अ टेरिबल फॉल, ये एक भयावह नीचे गिरने का जो इवेंट थी, घटना थी। फॉर द केम हेड डाउनवर्ड्स, यानी वो सिर के बल नीचे गिरा, 1 लाइक टिन सोल्जर। हिज हेलमेट एंड हिज बायोनेट स्टेप, उसका जो स्पीयर था, बायोनेट स्पीयर मतलब जैसे भाला होता है वो, और फ्लैट स्टोन्स उसके बीच में थे। एंड हिज 1 लेग अप इन, और उसकी जो 1 लेग थी वो हवा में ऊपर हो गई, यानी वो मीन्स जब वो सिर के बल गिरा तो उसकी एक टांग ऊपर हो गई और उसका सिर नीचे हो गया। द सर्वेंट मेड एंड द लिटिल बॉय वेंट डाउन स्टेयर्स डायरेक्टली टू लुक फॉर हिम, अब जो मेड सर्वेंट थी और लिटिल बॉय वो सीधे स्टेयर से, जीने से होते हुए उसको सीधे देखने गए। बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, परंतु वो उन्हें वहां कहीं भी नहीं दिखा। ऑल्दो वंस दे नियरली ट्रॉड अपॉन हिम, यद्यपि वो एक बार उनके पैरों के नीचे भी कुचला जाता अनजाने में। इफ ही हैड कॉल्ड आउट, यद्यपि उन्होंने उसे कॉल भी किया, हेयर आई एम, मैं यहां हूं, इट वुड हेयर बीन ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। बट ही वॉज टू प्राउड टू क्राई आउट फॉर हेल्प वाइल ही वॉर अ यूनिफॉर्म, वो ये बताने से कतरा रहा था, मीन्स मतलब अपनी इंसल्ट महसूस की उसने कि अगर मैं हेल्प के लिए बोलता हूं तो मेरी इमेज पर डाउन होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक सोल्जर हूं, सिपाही। प्रेजेंटली इट बिगेन टू रेन, इसी के साथ साथ इसी के जस्ट आफ्टर रेन स्टार्ट हो जाती है। एंड द ड्रॉप फेल फास्टर एंड फास्टर, और जो रेन है वो फास्टली फॉल डाउन होने लगती है, तेजी से पड़ने लगती है। टिल देयर वाज अ हैवी शॉवर, फिर तेज वर्षा होने लगती है। व्हेन इट वाज कवर ओवर, जब ये रुक जाती है, 2 बॉयज हैपन टू पास बाय, 2 बॉय वहां से गुजरते हैं। एंड वन ऑफ देम सेड, और उनमें से एक कहता है, लुक देखो, देयर इज अ टिन सोल्जर, ये टिन सोल्जर है। He ought to have a boat to sail it, हमें एक नाव बनानी चाहिए इसे उसमें फ्लो करने के लिए। So they made a boat out of a newspaper, इस तरह से वो एक न्यूज़पेपर से एक बोट तैयार करते हैं, बनाते हैं। And placed the tin soldiers in it, और उस टिन सोल्जर्स को उस पेपर से बनाई गई बोट में रख देते हैं। एंड सेंट हिम सेलिंग डाउन द गटर, और उसे गटर में जो पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उस गटर में उस बोट को यानी सोल्जर को बोट में रख करके छोड़ देते हैं। वाइल द 2 बॉयज रैन बाय द साइड ऑफ इट, और दोनों लड़के जो है उसकी साइड रन करते हैं। एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, और क्लैपिंग करते हैं। वेयर
एम आई गोइंग नाउ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, थॉट ही, उसने सोचा, मीन्स वन लैक टिन सोल्जर्स थॉट दैट वेयर आई एम गोइंग नाउ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। दिस इज द ब्लैक गॉब्लिन्स फॉल्ट, ये ब्लैक गॉब्लिन का फॉल्ट है। आई एम श्योर, निश्चित मैं ये मान सकता हूँ। आहा, वेल इफ द लिटिल लेडी वर ओनली हेयर विद मी इन द बोट, अगर मेरे साथ वो लिटिल लेडी बोट में होती तो आई शुड नॉट केयर फॉर एनी डार्कनेस, तो मुझे किसी भी डार्कनेस की, किसी भी अंधेरे की चिंता नहीं थी। स्टूडेंट्स, this is the explanation of this lesson. Student, you will study again and again at your home and clear the concept of this lesson at home. If you feel any problem, student, you can ask anytime. Okay, student, all the best.